Hi friends. We have started chapter number 3 in which we introduced first the battery, then we talked about electric current, then later on we moved on to introduce resistance using Ohm's law. So we discussed Ohm's law and then we introduced concept of resistance. Okay. Then in after resistance we discussed about resistors and resistivity. Now we come back to Ohm's law for a while and discuss the limitations of Ohm's law. Actually, Ohm's law is applicable to almost all conductors. It's applicable to all conductors. Now, what does Ohm's law says? I proportional to V. According to the statement, current passing through a conductor is directly proportional to potential difference across two ends of the conductor. ये हमने Ohm's law में देखा था. Which can be also written as ratio of I and V always remains constant. Ratio of current passing through a conductor and potential difference across conductor always remains constant. ये डिस्कस किया था ना. अगर I वर्सेस V का ग्राफ बनाया जाए तो हमने देखा था कि ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइक दिस. द ग्राफ ऑफ I वर्सेस V is always a straight line passing through origin with a slope giving inverse of resistance, that is conductance. Slope is y coordinate upon x coordinate and that is inverse of resistance. ये हमने पढ़ा था Ohm's law के बारे में ना. इसको अगर ध्यान से डिस्कस करें तो what does Ohm's law convey? With the increase in potential difference, current increases accordingly. With the increase in potential difference, as the potential difference increases, current also has to increase proportionally. Proportional increase मतलब क्या? It will always be a straight line graph. Such a relation with power 1 on both the sides is called a linear relation. This is called a linear relation, and linear relation always gives straight line graph. ये Ohm's law का कहना है. Now Ohm's law के बारे में it is quite rigid that current as you change the potential difference, current also changes. Current changes proportional to voltage, potential difference applied or voltage applied. This is what Ohm's law says. But we find that there are certain devices which do not obey this Ohm's law. उनके लिए ग्राफ कैसा आता है? So it may be it may be a straight line up to certain y and then it changes the shape. It no longer remains straight line. कुछ सबसे में तो ऐसा है like this के वोल्टेज बढ़ाओ, करंट अकॉर्डिंगली बढ़े, नॉट नेसेसरी. पहले करंट थोड़ा बढ़ा एंड फिर ऐसे शार्पली. These are junction diodes. We'll be studying them in details in junction diodes, which will be studying in details in chapter number 14. There are certain devices which have the property like this also. यही जंक्शन डायोड की एक और प्रॉपर्टी है कि करंट पहले एकदम हाई बढ़ेगा फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा. यानी ग्राफ नो लॉन्गर रिमेन्स अ स्ट्रेट लाइन. ग्राफ नो लॉन्गर रिमेन्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ये एक लिमिटेशन हो गया कि लीनियर ग्राफ होना जरूरी नहीं है. द रिलेशन इज लीनियर, नॉट नेसेसरी फॉर ऑल. Junction diodes, these are the semiconductors which are used. For junction diode, you don't get a straight line graph. Second limitation says that यहाँ पे as the potential difference increases, current also increases. यानी for every value of potential difference there is a unique current. For every value of potential difference there is a unique current. That is what it means. Okay. For each value of potential difference there is a one and only one current present. One relation Ohm's law बोलते हैं. With the increase in voltage, current increase accordingly. यानी हर एक वोल्टेज के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट होता है. But certain devices like in semiconductors we have certain devices such in which the graph comes somewhat like this. I versus V का ग्राफ कुछ ऐसा आता है. अब ये ग्राफ है, इसका मतलब क्या हो गया? करंट की एक फिक्स वैल्यू ले लो, you will get at this voltage also, at this voltage also, at this voltage also. यानी more than one voltages will have same current. यानी ये 1-1 relation नहीं रहता है. According to this relation is 1-1. पर यहाँ पे देखने को मिलता है it is many-1. It's a many-1 function in this type of devices. तो यहाँ पे Ohm's law does not hold true. ये दूसरा limitation हो गया. For certain elements, more than one potential difference may have same value of I. तीसरा केस क्या बोलते हैं कि V बढ़ेगा अकॉर्डिंगली I बढ़ेगा. वो तो बिल्कुल फाइन. पर कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें
here V is taken positive, suppose it is plus 5 volt and you get this value is suppose plus 5 volt and you get a particular current, suppose 3 milliampere. कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें प्लस 5 वोल्ट लिया अगर वैल्यू, तो करंट आपको मिलता है 3 मिलीएम्पियर। पर अगर वोल्टेज को नेगेटिव कर दो, वोल्टेज ऑन एक्स एक्सिस, करंट ऑन वाई एक्सिस, पर अगर वोल्टेज को नेगेटिव कर दो -5 वोल्ट ले लो, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वैल्यू शुड बी 3 मिलीएम्पियर, -3 मिलीएम्पियर। अब वोल्टेज को नेगेटिव करना मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव करना मतलब क्या, रिवर्सिंग द बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरचेंज कर दो तो दैट इज नेगेटिव वोल्टेज, उस पे करंट का डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगा, ऑब्वियसली करंट विल कम नेगेटिव। तो 5 वोल्ट पे अगर 3 मिली एम्पियर, तो 5 वोल्ट के 3 मिली एम्पियर आना चाहिए -3, पर नहीं, यहाँ पे देखने को मिलता है कि 1 माइक्रो एम्पियर आता है -5 पे, यानी पॉजिटिव साइन हो वोल्टेज की तो कुछ करंट, नेगेटिव साइन हो तो सम अदर वैल्यू ऑफ करंट। यानी इफ यू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज, if you change the polarity of the potential difference of the voltage, the value of current changes, value of the current changes. So that is the third limitation. ये तीन लिमिटेशन के कारण we find that Ohm's law is not applicable to all the conductors. It is limited for certain conductors only. Okay, so that's regarding limitation of Ohm's law. So friends, now let's come over to series and parallel connection of resistors. As we have discussed in chapter number 2 regarding what the concept of series and parallel connection is, there we had discussed that series and parallel connection are mainly done in order to manipulate the value of resistance as per our requirement. Industry has standard fixed values of the resistors available, but what we want for our circuit may be some other tailor-made value. So in order to obtain that tailor-made value from the available fixed values, we make use of series and parallel combination. तो यहाँ पे फिर से एक बार वही सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट वाज रिगार्डिंग कैपेसिटर्स, दिस इज रिगार्डिंग रेजिस्टर्स। ओके, पहले कंपैरिजन देख लेते हैं, फिर इनका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। नाउ सीरीज कनेक्शन यानी क्या, तो सीरीज कनेक्शन मींस व्हेन मोर देन वन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ लाइन, 1, 2 और 3, अगर लाइन में कनेक्ट किया तो सच अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर आपने एक से ज्यादा रेजिस्टर, लेट्स से R1, second is R2, third is R3, you connect across two common points, जैसे उधर डेफिनेशन है था वैसे ही, when they connect across two common points such that more than one paths of current is available, more than one path for current is available, such a combination is called parallel connection of resistors. In case of parallel connection, all the resistors have common end point A and B, they have common end point, while in case of series connection, एक एंड पॉइंट अगर ए कॉम्बिनेशन का तो दूसरा एंड पॉइंट बी यहाँ पर है। सो R1 का एक एंड पॉइंट यहाँ पर है तो R1 का दूसरा एंड पॉइंट R2 के साथ है, R2 का दूसरा एंड पॉइंट R3 के साथ है, एंड R3 का दूसरा एंड पॉइंट इज एट पॉइंट बी। सो हियर ऑल द थ्री डू नॉट एंजॉय कॉमन एंड पॉइंट्स, हियर ऑल द थ्री एंजॉय कॉमन, R1 के एंड पॉइंट्स A and B, R2 के एंड पॉइंट्स A and B, R3 के एंड पॉइंट्स A and B. So definition clearly says that when more than one resistor connect in a line and such a combination is series connection of resistors, यहाँ पे करंट के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसकी एक पहली कैरेक्टरिस्टिक में ले सकते हैं, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। यहां से अगर करंट आता है, एंटर होता है कॉम्बिनेशन, सपोज करंट आई, तो वही करंट R1 में से पास होगा, वही करंट R2 में से पास होगा, वही करंट R3 में से पास होगा, बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू गेट डिस्ट्रीब्यूशन। सो करंट पासिंग टू ईच वन विल बी सेम। करंट सेम है पर रेजिस्टेंस तो अलग अलग है ना हर एक का, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। करंट सेम है पर रेजिस्टेंस तो अलग अलग, इसलिए V विल बी डिफरेंट। तो इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each resistor is different, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के लिए अलग अलग होगा। सपोज R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, R3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, तो हियर V1, यहाँ तीनों का पोटेंशियल विल बी एप्लीकेबल फॉर द एंटायर कॉम्बिनेशन। ओके, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच वन इज डिफरेंट। जबकि इधर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ से करंट आएगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि 3 ब्रांचेस आर अवेलेबल। लेट्स से यहाँ पे I1, यहाँ I2,
यहाँ I3. Same current I here also, same current I here also, but here through each one same current, here through each one current will be different. तुम बोलोगे different क्यों? चलो डिस्कस करते हैं अभी. तीनों में करंट है, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3. ब्रांचिंग ऑफ करंट टेक्स प्लेस, ऑल द थ्री कम्स टुगेदर एंड फॉर्म्स अगेन I. तो जो करंट आ रहा था कॉम्बिनेशन वही करंट बाहर जा रहा है. Here what we find is that electric current through each resistor is different. ऐसा क्यों? The reason is second point. R1 के लिए एंड पॉइंट A एंड B, R2 के लिए एंड पॉइंट A एंड B, R3 के लिए भी एंड पॉइंट A एंड B, तीनों के लिए एंड पॉइंट सेम. मतलब क्या होगा? R1 के एंड पॉइंट A एंड B है, R2 के लिए, R3 के लिए, तीनों के एंड पॉइंट सेम है. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड. याद होगा ना चैप्टर नंबर 2 का बिगिनिंग. पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. इसलिए पैरेलल कनेक्शन में R1, R2, R3 तीनों के लिए एंड पॉइंट कॉमन है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन. पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. अब देखो V सेम, V इक्वल आई आर हमारे पास, V सेम है, R अलग अलग है तो ऑब्वियस साइड भी अलग अलग होगा. V सेम है, R अलग अलग है तो ऑब्वियस साइड भी अलग अलग होगा. कैसा होगा डिफरेंस? तो V इज कांस्टेंट, so we can say I is inverse proportional to R. So more the resistor, less the current, less the resistance, more the current. यानी the branch in which resistance is high, current will be low. Branch in which resistance is low, current will be high. यानी जहाँ पे current resistance high होगा, current कम होगा. जहाँ resistance कम होगा, उधर current ज्यादा मिलेगा. यानी जहाँ resistance high है मतलब तकलीफें ज्यादा है, वहाँ current कम मिलेगा. जहाँ resistance कम है, तकलीफें कम है, वहाँ current ज्यादा मिलेगा. सीधा सा कंपैरिजन है. After 10th standard we have 3 branches available: science, commerce and arts. What we usually find the students after 10 taking the branches, सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे आर्ट्स में, फिर सेकंड नंबर आएगा कॉमर्स में, एंड तीसरा लोवेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अवेलेबल इन साइंस स्ट्रीम. व्हाई इज दिस? तो आप समझते हो, आपने 1 साल 1.5 साल ऑलमोस्ट साइंस पढ़ लिया है, ऐसे पता लग गया क्यों लोग यहाँ कम होंगे. तकलीफें ज्यादा, करंट कम, वहां पे चार्जेस कम यानी करंट कम मिलेगा. जहां तकलीफें कम होगी वहां करंट ज्यादा मिलेगा. आर्ट्स में इट्स वेरी वेरी इजी टू स्टडी एंड क्लियर आउट 12th, सो इससे वहां पे मैक्सिमम पब्लिक मिलेगी. कॉमर्स में मीडियोकर है, जबकि साइंस इज टफ क्योंकि 2 साल की फुल मेहनत, फिर भी एंट्रेंस एग्जाम देनी है. यानी ये सब मिला के इट बिकम्स अ हैवी थिंग. एंड आफ्टर 12th ऑल्सो देयर इज 4 years इंजीनियरिंग, 2 years मास्टर्स, 2 years MBA, एंड तब जाके 10-12 साल पे आप बाहर निकलते हैं एज अ फाइनल प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट. आपने अगर मेडिसिन लिया है, बी ग्रुप लेके मेडिसिन में गए तो 12-15 साल तो पक्के ही बाहर निकलने में. सो इट बिकम्स अ वेरी टफ फील्ड. तो जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा, तकलीफें ज्यादा, वहाँ करंट हमेशा कम होता है. इससे वेंचर इनटू सच फील्ड्स वेयर पीपल विल बी लेस एंड हार्डशिप्स आर मोर, तो यू विल गेट मोर चांस टू ग्रो. वैसा ही केस हो गया ये, बराबर है. अब चलते हैं आगे. इसमें effective resistance of this entire combination, effective resistance of the entire combination is given as R equal to R1 plus R2 plus R3, एंड ज्यादा हो तो 1, एंड ज्यादा हो तो 1 फॉर n resistors in series. फॉर n resistors in series यहाँ 3 लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे इसमें? R equal to R1 plus R2 plus so on Rn, n resistors के लिए. इसमें भी मान लो R sub if, इसमें भी मान लो if R1 R2 all are same, Rn इज इक्वल, चलो R बोल देते हैं. सीरीज कनेक्शन के लिए हम लोग चलो इफेक्टिव वैल्यू को RS बोल देते हैं. तो R है, हर एक का वैल्यू, ईच वन इज R, तो RS विल बी इक्वल टू R प्लस R n टाइम्स NR हो जाएगा. तो इफ n इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ n इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम्स n टाइम्स. If n equal resistors are connected in series, then effective resistance becomes n times. Further, इसमें एक और बात देखते हैं यहाँ पे. चलो एक 3 वैल्यूज लेते हैं यहाँ पर. Let's take it here. Suppose R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm, and R3 equal to 5 ohm. ये अपना स्टैंडर्ड एग्जांपल है. तीनों को अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो कितना आएगा वैल्यू? तीनों को अगर सीरीज में कनेक्ट करें तो 1 + 2 + 5, so that makes 8 ohm. अब तीनों में 1, 2 और 5, तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 5, उससे भी ज्यादा. And what you find is when connected in series, the effective resistance becomes greater than the greatest.
जो सबसे बड़ा है उससे भी ज्यादा हो गया। तो हियर वी फाइंड दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर एस इज बिगर देन मैक्सिमम ऑफ ऑल। जो सारे कनेक्ट किए उनमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू उससे भी ज्यादा हो जाएगा। देयरफॉर रेजिस्टर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू उससे भी ज्यादा हो जाएगा। Therefore we say that resistance increases on connecting in series. Resistance increase, therefore we say that current decreases. तो अगर आपको करंट डिक्रीज करना है सर्किट में, इट इज अ करंट विच हैज टू बी मैनिपुलेटेड। हम याद रखें चैप्टर हमारा करंट का स्टडी है। करंट को अगर डिक्रीज करना चाहते हो तो यू हैव टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर सीरीज कनेक्शन। करंट को अगर डिक्रीज करना चाहते हो ब्रांच में तो उस ब्रांच का रेजिस्टेंस बढ़ाओ, उसके लिए सीरीज में रेजिस्टेंस लगाओ। चलो पैरेलल कनेक्शन में देखते हैं क्या होता है। तो पैरेलल कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू फॉर्मूला, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 3 के लिए। फॉर n रेजिस्टर्स इन पैरेलल, फॉर n रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ साइड बाय साइड? द रीजन यू कैन द कंपैरिजन डायरेक्टली पॉइंट वाइज। फॉर n रेजिस्टेंस पैरेलल 1/Rp विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन प्लस 1/Rn। इसमें भी अगर इफ ऑल ऑफ द वैल्यूज आर सेम, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू डैश डैश इक्वल टू Rn, इसको R बोल दिया तो क्या है 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस n टाइम्स, यानी 1/Rp विल बी इक्वल टू n टाइम्स 1/R। so this will, so effective resistance Rp will be equal to R by n, यानी if n equal resistors are connected in parallel, if n equal resistors are connected in parallel, the effective resistance becomes nth part। इसमें n टाइम्स होता था, यहाँ पे nth पार्ट होता था। ओके, फिर यहाँ पे वही तीन वैल्यू लेके देखते कैलकुलेट करने क्या आता है यहाँ पे। तो 1/Rp will be equal to 1/1 plus 1/2 plus 1/5। LCM लेके देखो तो this will come out to be 10 is LCM and ऊपर 17 आ जाएगा। तो therefore Rp will become equal to 10/17 which will be approximately 0.6 ohm, approximately 0.6 ohm, यानी कि तीनों में जो सबसे छोटा है 1 ohm, उससे भी कम। तो in case of parallel connection Rp becomes less than minimum of all, less than minimum, जो सबसे छोटा है पूरे लिस्ट में उससे भी कम। therefore we can say that less than least, less than least, therefore resistance decreases and hence current increases, यानी करंट बढ़ जाता है। मतलब पैरेलल कनेक्शन में क्या हुआ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, इससे करंट बढ़ जाएगा। तो इफ यू वांट टू इंक्रीज द करंट यू हैव टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस एंड फॉर दैट गो फॉर पैरेलल कनेक्शन। अब देखो करंट को क्या करना है, यू कैन मैनिपुलेट द करंट, मैनिपुलेट एंड गेट द करंट ऑफ योर चॉइस। कैसे? इफ यू वांट टू डिक्रीज गो फॉर सीरीज कनेक्शन, इफ यू वांट टू इंक्रीज गो फॉर पैरेलल कनेक्शन। करंट अगर डिक्रीज करना है तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, गो फॉर सीरीज कनेक्शन। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सीरीज कनेक्शन। अगर करंट बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, गो फॉर पैरेलल कनेक्शन। दिस इज द यूज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तुम बोला कि बीच का वैल्यू चाहिए तो अकॉर्डिंगली मैनेज करो, कंबाइन करो, मैनिपुलेट करो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ओके, सो दैट्स अ कंपैरेटिव स्टडी, हो सके तो कॉपी कर लेना। Now let's go on for obtaining formula for effective resistance for series connection of resistors. Effective resistance का formula चाहिए। Effective resistance can alternate be called as equivalent resistance, equivalent resistance, or it can also be called as resultant resistance। तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, effective, equivalent और resultant resistance। Now here we have combination of series resistors, series combination resistors, that is R1, R2, R3 connected in series। कनेक्ट कर देते हैं इसको एक बैटरी के साथ। लेट्स से बैटरी हैविंग वोल्टेज V, थ्रू ड्यू टू बैटरी करंट विल पास विच कम टू R1, सेम करंट विल पास टू R2, सेम करंट विल पास टू R3। ये करंट I हो गया पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर। वी नो दैट इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन इफेक्टिव रेजिस्टेंस करंट इज सेम थ्रू ईच वन। नाउ इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 विल बी, करंट I पास हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 बोल देते हैं। थ्रू R2 potential difference will be V2 and through R3 potential difference suppose V3. Now in case of series connection we know that current passing through each one is same but potential difference are different. Now potential difference or as voltage
delivered by battery from battery V can be written as V1 plus V2 plus V3. यहाँ से जो डिलीवर हुई तीनों में इन दोनों का टोटल गिव्स अ बैटरी वोल्टेज. Now V1 is equal to current I passing through R1, so IR1. V2 equal to IR2. V3 equal to IR3. On left side we take I common, R1 plus R2 plus R3. That's equal to V. So therefore V upon I is equal to R1 plus R2 plus R3. Let's say equation 1. Okay. Now in this combination of series connection of resistors, ये तीनों मिला के इट्स अ कॉम्बिनेशन जिसको वोल्टेज भी अप्लाई किया, करंट आई आ रहा है उसमें से. कॉम्बिनेशन R1 R2 R3 इज अप्लाइड वोल्टेज V एंड करंट इज I. इफेक्टिव करंट इज I. मतलब क्या हो गया, इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस अगर RS ले ले, कंसीडरिंग अ रेजिस्टेंस RS इन प्लेस ऑफ ऑल द थ्री with the same battery it generates same current. Same battery generates same current. It's like RS value ले लिया, तो here we can write that V equal to IRS. We can write V equal to IRS as per Ohm's law in this. So therefore V upon I क्या आएगा, RS. Equation number 2. Same voltage, same current. V upon I equal to RS. मतलब ये हो गया कि ये लो या ये तीनों को कॉम्बिनेशन में लो, बात तो एक ही हो गई, यानी equating 1 and 2. So what we get is RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So ये equivalent resistance actually है क्या, either take these in series or take this value, दोनों सेम है, equivalent बोल सकते हैं, या तीनों का इफेक्टिव वैल्यू RS है, इफेक्टिव बोल सकते हैं, तीनों का रिजल्टेंट RS है, रिजल्टेंट बोल सकते हैं. That's how the name justifies. Okay, so this is RS. इसके साथ साथ में ही बोल देते हैं फॉर n रेजिस्टर्स इन सीरीज, आगे जो डिस्कस किया था वैसे, फॉर n रेजिस्टर्स इन सीरीज RS विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस so on Rn. फिर आगे आप हर एक सेम ले लो एंड so on. ओके, सो क्लियर अबाउट दिस. अगर ये पूछा तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, दिस मच इज द डेरिवेशन यू हैव टू डू. क्लियर. Next we go on for obtaining the formula for effective resistance of parallel combination. Parallel combination में क्या हुआ, more than one resistors connected across a common point, two common points, R1 R2 R3 connected across two common endpoints. That's called parallel connection of resistors. अब इसका effective resistance ढूंढना है across A and B, क्या आएगा, तो उसके लिए let us connect a battery. effective resistance ढूंढने के लिए पहला काम बैटरी कनेक्ट करो. लेट्स से वोल्टेज ऑफ बैटरी इज V, इसमें से करंट शुरू होगा, लेट्स से करंट I इज डिलीवर्ड बाय द बैटरी. ये करंट I यहाँ पर आया, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, I1 I2 एंड I3. I1 R1 में से पास होता हुआ इधर आएगा, I2 R2 में से पास होता हुआ इधर आएगा, I3 R3 में से पास होकर इधर आएगा, एंड ऑल द थ्री कंबाइन टुगेदर तो अगेन फॉर्म करंट I. ओके, सो हियर electric current I delivered by battery I is equal to I1 plus I2 plus I3. Let's say equation 1. Okay, now I1 के बारे में बात करें तो as parallel combination potential difference same. Therefore R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V लगेगा, तो V इक्वल टू I1 R1, V इक्वल टू I1 R1. Therefore I1 will be equal to V upon R1. Let's say equation 1 and let's see it later. Secondly 2 के लिए same potential difference applies for 2 also, तो V equal to I2 R2. Therefore I2 will be equal to V upon R2. Same way R3 के लिए, so what you get is I3 equal to V upon R3. Let's say set of equation 2, putting it in 1, putting 2 in 1, what we get is I is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3.
लेट्स से इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ ये पूरे का इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी सपोज आरपी. तो इस पूरे को हटा के आरपी लगा दे. प्लेस एन आरपी इन प्लेस ऑफ द एंटायर थिंग such that with the same battery generates the same current V equal to, and यहाँ पे सेम करंट जनरेट हो I, यानी इस पूरे की जगह पे आरपी लगाया such that same battery generates same current. So by Ohm's law here we can write, by Ohm's law we can write here V equal to I into RP. So therefore I will be equal to V upon RP. Let's see equation number 4. Placing it in 3. Comparing 3 and 4, what we get is V upon RP is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. V common निकल के हो गया क्योंकि पोटेंशियल इसमें सेम है. So what we get is therefore 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ये हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. ओके, and for n resistors in series we have 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 and so on 1 upon Rn. Okay, so that's the derivation for effective resistance of parallel combination. Clear? It is sum of inverses gives the inverse of the effective value. Okay, now as a tail piece we take the case of two resistors only. ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूजुअली 2 रेजिस्टर्स आर प्रेजेंट. बराबर है, इससे ये फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली बता दूं. पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लिखेंगे? आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2. स्वीट एंड सिंपल. पैरेलल कनेक्शन में क्या लिखेंगे? तो RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये खास ध्यान रखें. कैसे आइए? तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 फॉर 2 रेजिस्टर्स ओनली. राइट साइड पे एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो R1 R2 एंड ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2. यूजुअली इट हैपेंस दैट हम इसको सिंप्लीफाई करके आंसर देते बोले खत्म हो गया. नहीं, दिस इज 1 अपॉन RP. इसलिए अगर RP चाहिए तो यू हैव टू डू द इनवर्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो खास ध्यान रखें, व्हेन यू आर डीलिंग विद ओनली 2 रेजिस्टर्स डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. एक और बात जो मुझे खास बताना है, यहां से जो किया यहाँ पर ये 1 upon RP है. Remember well, whenever processing the parallel connection and obtaining the resultant resistance, at that time be very much careful. Left side it is inverse. ये inverse करना नहीं भूलना. 90% students are making this mistake. इसको simplify करके बोले आगे आंसर. नहीं, inverse करना बाकी है जो left side पे. इसे be very careful. 2 के लिए यूज करें तो directly you have the formula. If you are processing more than 3 resistors, at that time be very much careful. Left side it is inverse of parallel connection. भूलना नहीं है. 90% students are making this mistake. Okay, that kind of completes the series and parallel combination of resistors. आगे और बाद में देखेंगे.